Welcome back to the series, The Midas Test, a journey from financial basics to financial mastery with Vikas Joshi, wherein master your finances, secure your future. The Midas Test series aims to provide clear, practical financial knowledge, helping you to take control of your financial future. The objective is to lead you from foundational concepts to financial expertise, ensuring you are well equipped to achieve long lasting financial success. ये श्रृंखला में हम वित्तीय ज्ञान को सरल और समझने में आसान तरीके से पेश करेंगे ताकि आप अपने आर्थिक भविष्य को शाश्वत बना सके। आइए इस सफर की शुरुआत करें। ये एक कोशिश है सो एज टू मेक यू स्टेबलाइज इन योर फाइनेंशियल फ्यूचर, मेक द फाइनेंस स्टेबलाइज्ड. So today's topic is, friends, setting short term and long term goals. So setting of financial goals means defining clear objectives for your money over different time frames. Short term, normally these are for within 1 year, that cover the needs or aspirations you want to achieve within a year, such as saving for a vacation, ये हो सकता है, paying off a small debt. Sorry. Long term goals, on the other hand, involve larger financial milestones like buying a home, saving for retirement, or building wealth for several years. So short term goals हमें वो रोजमर्रा की जिंदगी के लगने वाले खर्चों में से हैं, wherein we are already segregated the needs and wants. We are planning for our needs. Our wants are long term goals. Our needs are short term goals. मुझे घर खरीदना है, want है. मुझे गाड़ी खरीदनी है, want है. मुझे रोजमर्रा की जिंदगी जीनी है, वो नीड है मेरी. So these are short term and long term goals. So you have to plan accordingly, because financial goals, they should be in place. Without the financial goals, we cannot proceed further. अगर हमको पता ही नहीं है खर्चा क्या करना है, कैसे करना है, तो हम कैसे जो भी आएगा खर्चा करते रहेंगे. Expenses will be made irrespective whether they are needs or wants. After the purchases, if you realize, oh, we have spent more on wants, then it is too late, because whatever you are accumulated is now going away on this needs expenses. So you have to plan. So set the goals, prioritize the thing. Let it be segregated into the achievements for 1 year and achievements above 1 year. Correct? That should be the way. So why is it necessary? Having both short-term and long-term financial goals is essential for maintaining financial stability and security. ये श्रृंखला हमने इसीलिए शुरू की थी कि हम फाइनेंस सिक्योर करें, आवर लाइफ सिक्योर हो जाए. द लाइफ शुड बी फाइनेंशियली सिक्योर्ड एंड स्टेबल आल्सो. तो मतलब सिक्योर्ड एंड स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना. इसके लिए तो गोल्स ही नहीं रखेंगे तो हाउ आर वी गोइंग टू प्लान आउट आवर फ्यूचर? तो हम तो मियर वॉन्डर हो गए. आ गया पैसा, खर्चा कर दिया, नहीं आया तो नहीं किया. अरे ऐसा थोड़ी चलता है. नहीं चलना चाहिए. चल रहा है तो बंद होना चाहिए. अगर आपने ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं किया है, करना शुरू कीजिए. जिस मंथ में आप प्लानिंग शुरू करेंगे उस मंथ आपको थोड़ी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज आपने अभी तक आदत नहीं डाली है. यू आर नॉट अवेयर टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस ऑन नीड्स and control your expenses on wants. The needs are to be necessarily bought for. You are to expend amount on your needs. That is a necessity for life. लेकिन अभी जब शुरुआत करेंगे तो कुछ तो आपके पास बना रहेगा और कुछ आपको खर्चा करना पड़ेगा. Now that is where I want to say that you have to plan the things. So short-term goals would keep you on track with the immediate priorities. इस महीने में हो रहा है, अगले महीने में हो रहा है, साल भर में जो होने वाला है उसकी तैयारी आपने कर ली है. While long term goals ensure that you are prepared for future needs and opportunities. आगे चल के मुझे क्या करना है वो उसका प्लानिंग भी आपने करना चाहिए. Unplanned life is of no use, friends. It never gives you good results. So these goals provide structure and help you to stay focused, preventing financial decisions from becoming impulsive or misaligned with your overall life requirements or life plans. लाइफ में बहुत सारी ज़रूरतें हो जाती है. हमको लगता है कि अरे ये तो अभी मेरी ज़रूरत है, मेरे को अभी चाहिए. ये अभी चाहिए क्यों? क्योंकि प्लान ही नहीं था ना.
सो अगर आप सेग्रीगेट करोगे, नाउ यू आर अवेयर ऑफ द एक्सपेंसेस, अगर आपका खर्चा कहीं एक जगह ज्यादा भी हो जाता है, फिर भी it is in control because now you have decided by your will, under your planning, that yes, I have to expend this money on this thing, though it may be the want, but now it has become the need. कभी कभी बच्चे जिद कर बैठते हैं तो मुझे हमें खर्चा करना पड़ता है, कभी कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं तो खर्चा करना पड़ता है। सो ये जो खर्चा करना पड़ता है ये क्या है? accumulated finance now going out, where is the stability? So hence we have to plan, so we have to plan for the emergency fund. हो सकता है ना, कभी भी हो सकती है इमरजेंसी, नोबडी टेल्स यू। मेहमान आ गए, क्या बोलोगे? नहीं आना अभी नहीं, क्योंकि हमने तुम्हारी प्रोविजन नहीं करी है। यू कैन नॉट से, नो वन सेज लाइक दैट। सो फ्रेंड्स, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर प्रायोरिटीज एंड योर फ्यूचर ऑल्सो। जिससे आप लिखना चालू करोगे, अपने गोल्स लिखना चालू करोगे, तभी आप समझ में आएगा, अरे हाँ रे, ये भी तो मैंने सोचा नहीं था। फ्रेंड्स, प्लीज डोंट बिलीव ऑन योर ब्रेन्स, मतलब सिर्फ मैंने दिमाग में रखा है तो मेरे दिमाग में रह जाता है। नो नो, नहीं होता है, 101% नहीं रहता है। इट इज बेटर दैट यू राइट डाउन। प्लीज, आजकल की सारी जनरेशन कंप्यूटर्स पे लिखते हैं, आई डू अप्रिशिएट द सिस्टम, बट आई वुड सजेस्ट टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन, राइट डाउन इस महीने में क्या क्या प्रोबेबल खर्चे करने हैं आपको। मान लो कि इस महीने में मुझे नया कुछ खरीदना है, पुराना घर का निकालना है, जो भी रहेगा वो, द क्लटर इज टू बी मूव्ड आउट, दैट कम्स अंडर दिस प्लानिंग। प्लीज डू नॉट कीप द क्लटर इन योर हाउस। वो तो कचरा जिसका यूज नहीं है। अब जो चीज आपके घर में पड़ी है, पिछले 6 महीने से आपने इस्तेमाल भी नहीं की है, तो उसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं, पहले देख लीजिए कितना है। मतलब अभी कैमरा अगर रखा होगा तो आप साल भर में एक बार जाओगे, तो उसको मत निकालो। कैमरा इज अ बिग थिंग, बट दैट इज रिक्वायरमेंट, वो वांट के लिए आपको काम में आएगा। प्लान है मेरा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में मैंने लिखा है कि मुझे घर खरीदना है, फिर मुझे टूर में, बड़ी टूर पे जाना है, छोटी टूर कैमरा काम आ जाएगा। साल में एक बार हम घूम के आते हैं, गांव चले गए, कोई बात नहीं। सो दैट इज हाउ यू शुड सेग्रीगेट। दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल और क्रूड एग्जांपल, लेकिन कई चीजें ऐसी है जिनका यूटिलिटी अभी नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जो एक अपने बच्चे ने क्लियर कर दी एग्जाम सारी ग्रेजुएशन की, अब उसकी ग्रेजुएशन की बुक, किताबें, नोटबुक्स, these are to be moved out from the house. They are eating away your space. Not only that, but they are eating away your decorum also, decoration also. मतलब जो दिखता है अगर वो एकदम क्लटर जैसे, यार क्या है इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है, क्या है वो। So that is how you have to plan. And when you throw that out, sell that out, वो रद्दी वाले के पास जाएगा या जो भी होगा उसके जो अमाउंट आएगी, that will be again added to your fund, emergency fund. खर्चा नहीं करना है वो वो आपने जो क्लटर निकाला उससे बचा हुआ पैसा है, ये एडेड आ गया आपके पास, some additional has come, that will be helpful for you to meet your emergency. This is just a small example. यही करना, आप धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप बड़ा जरूर पाओगे। So how to approach this is that we'll explore it by step approaches to settling and achieving both short-term and long-term financial goals. We will help you to understand how to prioritize goals, allocate resources, and create a clear gain plan of action. By breaking down the complexities of goal setting, this series will give you the tools to stay organized and proactive in managing your financial future. उसमें से एक मैंने अभी बता दिया, एक जो क्लटर वाला किस्सा आपको बताया, एग्जाम्पल करके बताया, दिस इज वन ऑफ दैट पार्ट। सो दीज आर द टूल्स, सिंपल टूल्स है, हमें इसको तुरंत करना चाहिए। डोंट वेस्ट आवर टाइम, योर टाइम। So to effectively set the financial goals, start by writing them down and categorizing them into time frame, time slot में डालिए, कब करना है। नहीं, इस साल हम टूर जाने वाले हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल, you see nowadays if you are booking a ticket for a plane, the late you book the ticket, you have to pay a heavy price. It is not nowadays, it is always like that only. जब भी आप जाने का समय करते हो, जब प्लान करते हो तो प्लान पहले से करो ताकि उसमें बचत कर सको ना। अब एयरलाइंस अगर ये बोल रही है कि हम टाइम पे, अगर लास्ट मोमेंट पे आप टिकट बुक करोगे तो यू विल बी चार्ज मोर,
देन व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दैट व्हेन यू आर प्लानिंग? अगर प्लानिंग में है तो इसकी क्यों जरूरत है? तो जल्दी कर लो, यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स। ये एक छोटा एग्जांपल था। वैसे ही आपको प्लानिंग करके ही चलना चाहिए। अनप्लान्ड चीजें यू हैव टू जस्ट इग्नोर। इसलिए इग्नोर कर दें क्योंकि अगर जब प्लानिंग में ही नहीं था तो करना ही नहीं है। लेकिन जब कुछ कर ही नहीं रहे थे और अगर हमने अनप्लान्ड चीजें करना चालू कर दिया तो एक्सपेंसेस तो होना ही है। तो यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट द अनप्लान्ड एक्टिविटीज। Review and adjust your goals regularly for your financial situation evaluation. आपने एक बार लिख लिया इस महीने में मुझे क्या क्या करना है, तो बी स्ट्रिक्ट इनफ विथ योर सेल्फ टू फॉलो दैट, देन प्लान आउट द थिंग्स। कि जैसे इस महीने में खर्चा होगा, बच्चों की पढ़ाई का है, मुझे टूर करने के लिए जाना है, मुझे ये करना है, जो भी अपने फैमिली का होगा वो सारा लिखो, उसके सामने एक अमाउंट लिखो, अप्रोक्सीमेट अमाउंट। देन यू विल रियलाइज कि आपको कितनी तैयारी करनी है। So stay committed by tracking progress and celebrating milestones along the way, ensuring that both your short-term and long-term objectives are aligned with your overall financial success. तो अगर आप इस तरह से प्लान करना शुरू करेंगे, now success is assured because now you are planning everything minutely. क्योंकि अगर प्लान में नहीं है तो वो करना ही नहीं है, तो अगले इसमें डाल दो। करना नहीं मतलब इस महीने में नहीं करना। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए सितंबर में हमने कुछ तय किया था और अचानक मुझे लगा कि नहीं अभी मुझे बाहर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं आमतौर पे बोलते बोर हो गया। नहीं बाबा, तू बोर हो जा, लेकिन अभी बाहर नहीं जाना है, बिकॉज वी हैव प्लान्ड आवर वेकेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मे, सो वी कैन नॉट अफोर्ड और वी शुड नॉट, आई विल नॉट यूज द वर्ड अफोर्ड, but I should not enter into any unplanned activity for such a thing. अब जब मैंने प्लानिंग की है कि मैं अप्रैल में जाऊंगा तो मैं अप्रैल में ही जाऊंगा, unless and until it is a dire necessity. जैसे अभी कोई अपना दूर का रिश्तेदार या अपना रिश्तेदार कहीं दूर रहने वाला रिश्तेदार गुजर जाए तो it becomes a necessity that you pay the homage. Now how that you have to see whether you have to go along with your family or you alone can be done. That is what you have to take a financial decision on. And that is what we call planning. So friends, it is important to have the short-term plan for finance and long-term plan for finance in place. लिखना चाहिए। Untoward expenses वो तो आने वाले हैं, because life is going to pose the many problems. जैसे मैंने अभी कहा कि किसी अपने फैमिली में डेथ हो गई तो हमें होमेज देने के लिए जाना तो पड़ेगा, वो तो बोल के तो नहीं आएगा ना। या कहीं शादी हो गई, तय हो गई, तो हमें शादी में कहीं दूर जाना पड़ता है तो जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमें शादी और इसमें तो त्योहार में हमें न्योता आ जाता है, हमें पता भी होता है, तो वी कैन प्लान दैट एक्टिविटी। बट मौत नहीं, इसका कोई प्लानिंग नहीं होता। सो दैट इज अनटूवर्ड एक्सपेंस, इमरजेंसी फंड्स, इमरजेंसी एक्सपेंसेस। अब क्या कर सकते हो? यू हैव टू प्लान फॉर इमरजेंसी फंड्स। दिस इज द बेसिक्स फॉर फाइनेंस। And as you write down, you will realize that now you are moving from financial accumulation to financial stability. वो इमरजेंसी फंड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। अभी क्या करना, भूख लगी तो मैंने वड़ा पाव मंगा दिया, इमरजेंसी फंड से पैसा निकाल दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं करना है। वो वड़ा पाव खाने के लिए इमरजेंसी फंड नहीं है, वो आपको सेविंग से ही निकालना है आपको, वो इमरजेंसी फंड अलग है। सो यू हैव टू प्लान दैट। देखो, एक छोटा हर घर की कहानी का एक एग्जाम्पल है। हम चाहते हैं कि बाहर जाके खाना खा के आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर नहीं खा सकते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम थोड़ा रेस्ट चाहते हैं, थोड़ा चेंज चाहते हैं, बस उतना ही। तो वो जो उतना ही है, दैट हैज टू बी प्लान्ड। महीने में एक बार हम कहीं जाते हैं या महीने में 15 दिन में एक बार हम जाएंगे, ये प्लानिंग में आना चाहिए, एक्सपेंसेस सहित, approximate expenses सही, so that now you are aware of your short term plan, financial goal. So you will not be facing any challenges in finance, but unplanned activity definitely is going to create challenges for you. So friends, please set a short term and long term financial plans for your life and take this first step towards financial stability right now, today.
Till then, we meet you in another episode of Midas Touch, a journey from financial basics to financial mastery with Vikas Doshi, wherein we master your finances, secure your future. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.